हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? Alright, so my name is Aditya and I'm your maths faculty for the day. Today we are going to deal with a very interesting topic, that is polynomial. And ये अपन lower grade से पढ़ते आ रहे हैं. Basic of polynomial already we have deal in class 9th as well, है ना? तो start करते हैं. Do you have any idea about polynomial? What exactly polynomial is? Anyone? Alright, so polynomial is a type of expression. Polynomial is a type of expression where exponents will be a non-negative integer. Exponents will be a non-negative integer, or we can say कि a whole number, or we can say कि is a whole number, right? But before this we'll have to get a basic idea about expression, what exactly expression is. So let's talk about bit expression, then I'll back to this topic. So expression what is expression? So expression is a combination of constant and variable. Expression is combination of constant and variable attached by arithmetic sign like plus or minus. But before that let's talk about constant and variable as well, what exactly the constant is and what is variable. So constant is something which is fixed, right? And variable it's something which is not fixed. I'll give one simple example. Let's say कि Ram is going to the market and his mom asked him to bring 5 apples. Okay, so in that case he'll go to the market and let's say he has sufficient money, so he'll go to the market and he'll pick 5 apple and he'll come, right? Now second scenario is कि let's say कि his mom asked him to bring 1 bucket of apple and let's say कि he has 3 buckets, है ना? The capacity of first bucket is let's say 20 and the second is let's say 10 and 5. So now he can bring the quantity of apple will depends ki which bucket he is going to choose, right? If he will pick first bucket then he can bring 20 apples. For the second case he can bring 5 apples and for third one he can bring 5 apples. So here quantity of apple is not fixed, right? So just like that we have two terms in mathematics, constant and variable. Something which is fixed, जैसे यहाँ पे अपन फर्स्ट केस में बात किए थे, he has to bring 5 apple, right? So your quantity of apple is fixed, है ना? यहाँ पे क्या होगा, it depend on कि which bucket he is going to pick. If he'll pick first, second, third, so like that the quantity will also change. So just like that we have two terms in mathematics, constant and variable. But let's say कि his mom told कि now bring apples, but you have to choose the largest bucket. Now in that case he can fix the quantity कि अगर ये largest bucket choose करता है तो he can bring maximum 20 apples. So like that in mathematics if they will give some condition in the question, so based on that condition we can find the value of variable, right? चलो, so expression अपन क्या बोल रहे हैं कि combination of constant and variable. Constant क्या होगा, जो भी numerical values होंगे like 1 2 3 4 these are constant. Variable क्या होगा, maths में जो भी unknown होंगे we used to represent by variable, and variables can be represented by English alphabet. It's like कि A B C X Y Z and so on, right? Now क्या बोल रहे हैं अपन कि combination of constant and variable. जैसे मान लो अपन ये लिए x plus 5, so this is what, this is expression. Now once we'll equate this expression with any other constant variable or even other expression, so it will become a equation. Means what, कि once equality sign came into picture we can say कि it's a equation, है ना? It's a equation. So that's the basic difference between expression and equation, right? So back to the topic, polynomial अपन क्या बोल रहे हैं कि polynomial is a type of expression where exponent will be what, a non-negative integer, है ना? Now let's talk about the standard form of polynomial. So standard form of polynomial is kind of a n x की power n plus a n minus 1 x की power n minus 1 like a naught, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और अपने को बात करनी होगी कि डिग्री क्या होती है ना? सो टॉकिंग अबाउट द डिग्री, डिग्री इज काइंड ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, है ना? डिग्री से और क्या पता कर सकते हैं अपन,
डिग्री विल डिसाइड कि एट मोस्ट हाउ मेनी रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हैव, एट मोस्ट हाउ मेनी रूट्स, एट मोस्ट हाउ मेनी रूट्स द गिवन पॉलिनोमियल विल हैव, है ना। नाउ लेट्स से कि विल हैव पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ठीक है। सो यहां पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, राइट। सो वी कैन से कि इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। और इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने पॉसिबल है, एट मोस्ट रूट क्या बोलेंगे अपन, एट मोस्ट नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, तो वी कैन से कि 1, है ना। व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपन क्या बोलेंगे, यहां पे डिग्री क्या है, तो अगर डिग्री की बात करें तो हियर इट्स 1, हियर इट्स 2, और ये क्या होगा, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। एंड एटमोस्ट रूट क्या होंगे, 2 होंगे। एटमोस्ट रूट बोलने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 रूट पॉसिबल है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हो, किस टाइप का पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहे हो, राइट। द थर्ड पार्ट इज व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट्स लाइक कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें एटमोस्ट कितना रूट पॉसिबल है, 3 रूट पॉसिबल है। एटमोस्ट का एज आई टोल्ड कि 3 मैक्सिमम रूट होगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 1 भी नहीं हो सकता है, डिपेंड्स कि आप किस टाइप का पॉलिनोमियल ले रहे हो, है ना। थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं, द नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ कर्व क्या होगा इसका, नेचर ऑफ कर्व क्या होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। व्हाट अबाउट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, काइंड ऑफ पैराबोलिक इन नेचर, यू शेप बोलते हैं इसको। अब ये कैसे होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, डिपेंड्स कि यहां किस टाइप का पॉलिनोमियल ले रहे हो, उसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि पैराबोला विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। इस पे विल मूव इन लैटर फेज। एंड द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज काइंड ऑफ एस शेप कर्व, डिपेंड्स अगेन, नेचर इसका फिक्स नहीं होगा, बट अगर y इक्वल टू एक्स का कर्व खींचे तो ये कैसा जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस पे और डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट पेज, वहां पे अपन बात करेंगे ज्योग्राफिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स क्या है ये समझते हैं। जैसे मान लो आप कोई कर्व ले रहे हो, लेट्स से कि दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड अ कर्व इज समथिंग लाइक दिस। सो द ग्राफ इट विल कट द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, लेट्स से कि 1 2 3 4 5। तो ये एक्स को जितने बार कट करेगा उतना मैक्सिमम, उतना क्या होगा, रूट्स पॉसिबल है। सो 1 2 3 4 5, एक्स को 5 बार कट कर रहा है, तो यू कैन से कि जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 5 होंगे। अब वन मोर डाउट केम इन योर माइंड कि यही अपन क्यों ले रहे हैं कि एक्स को ही कट कर रहा है, देन व्हाई वी आर काउंटिंग द रूट्स। द रीजन इज कि आप कोई भी, लेट्स से कि आई एम टेकिंग अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, है ना, लेट्स से कि आई एम टेकिंग अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4, राइट। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2, at x is equal to 2. So p of 2 will be kind of 2 की power 2 minus 4, or we can say कि 4 minus 4 is what, 0, right? So at x is equal to 2, the value of this polynomial become 0, right? So we can say कि x is equal to 2 is the root of this polynomial, right? अब यही को, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं कि y is equal to x square minus 4, मतलब x is equal to 2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और y 0 कहां पे होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कंप्लीट x एक्सिस जो आपका है, दैट इज व्हाट द y इक्वल टू 0। सो वी कैन से कि दैट्स द रीजन कि कर्व जहां भी x को कट कर रहा है, जहां भी x को टच कर रहा है, कट कर रहा है, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। सही है क्या, यहां तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है एनीवन? चलो, टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, let's say I'm taking a linear polynomial ax plus b, है ना, standard form of linear polynomial is ax plus b, and अपन कोई भी एक simple polynomial ले रहे हैं y equal to x plus 5, right? Now let's say we have to plot the curve for this y equal to x plus 5. What we'll do, we'll have to plot this curve on Cartesian coordinate system x and y
सो फॉर दैट सी जनरली आप क्या बोल रहे हो कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, बट टू प्लॉट दिस स्ट्रेट लाइन वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट, क्योंकि आप एक पॉइंट लेते हो तो एक पॉइंट से वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, राइट। और आप एक पॉलिनोमियल ले रहे हो, सो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल विल हैव अ पर्टिकुलर लाइन, विल हैव अ पर्टिकुलर कर्व। सो एक लाइन के लिए कम से कम मेरे को 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, सो दैट वी कैन कंस्ट्रेंट दोज लाइंस और सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइन अपने को मिल सके, है ना। सो हाउ विल फाइंड दिस 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट, राइट। सो कुछ भी कर लो, द बेसिक थिंग इज कि आप क्या करो कि एक बार x0 कर लो और y की वैल्यू फाइंड कर लो, और एक बार y0 कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, एज सिंपल एज दैट। तो x0 ले रहे हो तो y कितना आ जाएगा 5, y0 ले रहे हो तो x विल बी व्हाट -5। सो यहां से विल गेट 2 कोऑर्डिनेट 0,5 एंड -5,0. Now try to plot this point on the Cartesian system. Let's say this is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 and -5. So we have 2 points like 0,5 somewhere here and -5,0 it's somewhere here, right? So our graph will be something like this. Now do one more thing. Now try to plot the curve for y equal to x. y equal to x का क्या होगा? तो अगर आप x1 लेते हो तो y1, x2 तो y2, right? So x1 y1 x2 y2. So y equal to x की जो लाइन होगी that will go something like this. This is what this curve is for y equal to x plus 5. This is for y equal to x. Take another straight line, linear polynomial y equal to x minus 5. Now try to find 2 coordinate for this polynomial as well. Same procedure, we'll put x is equal to 0, we'll find y, we'll put y equal to 0, we'll find x. So at x is equal to 0, y is -5, and at y equal to 0, x is 5. So we'll get another 2 coordinate for this linear polynomial y equal to x minus 5, x equal to 0 and y minus 5, x equal to 5 and y equal to 0. So this is what the third line. Looking into all these 3 polynomial and graph of all these 3 polynomial, we'll get one simple relation between all these 3 lines, and that relation I want to explain with shifting of curve. अब ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, है ना, बट आई विल गिव वन ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस कि लेट्स से कि जस्ट कीप इन माइंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस ग्राफ y इक्वल टू x. सो व्हाट हैपेंड, दिस y इक्वल टू x प्लस 5, आप कर क्या रहे हो, देखो x में आप 5 ऐड कर रहे हो और x में आप -5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। अगर ये तीनों पॉलिनोमियल की बात करें अपन, y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x माइनस 5, तो हो क्या रहा है, इसको अपन बोल रहे हैं कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो यहां पे क्या कर रहे हो, आप 5 ऐड कर रहे हो, यहां पे क्या कर रहे हो, x में 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ग्राफ पैरेलली क्या हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है। देख लो, अगर आप 5 ऐड कर रहे हो तो ग्राफ इज शिफ्टिंग 5 यूनिट लेफ्टवर्ड पैरेलली, बट इन सेकेंड केस इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 5 देन ग्राफ इज शिफ्टिंग 5 यूनिट राइटवर्ड. सो जस्ट कीप इन माइंड, है ना, कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इतना सारा प्रोसीजर ना करके आप सीधा बाय शिफ्टिंग ऑफ कर्व आप एनालाइज कर पाओगे. कि जैसे मान लो कोई दे दिया कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो अपन क्या करेंगे कि y इक्वल टू एक्स ग्राफ मेरा क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन और एग्जैक्टली 45 डिग्री से पास कर रहा है. तो प्लस कर रहे हैं मतलब क्या, ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड पैरेलली एंड माइनस मींस व्हाट, ग्राफ विल शिफ्ट पैरेलली राइटवर्ड, राइट. सो x प्लस 3 कर रहे हैं तो 3 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा, वो x माइनस 3 कर रहे हैं तो 3 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा. So that's the benefit of shifting of curve. सही है क्या? So this is what the basic, geometrical meaning of linear polynomial. Let's we talk about the quadratic polynomial. Quadratic polynomial का standard form क्या है? तो we can say कि ax square plus bx plus c is equal bx plus c where a not equal to 0, है ना. अब a not equal to 0 क्यों है? क्योंकि अगर आप a 0 कर देते हो, let's say we'll have a polynomial ax square plus bx plus c. जैसे आप a 0 करते हो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा. So we'll get bx plus c and this is what the linear polynomial. So we can say कि x a should never be equal to 0, right.
वन मोर थिंग, आई टोल्ड की ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is parabolic in nature. Parabolic is what kind of U shape. So I told कि that will mostly depend on A, कि आपका A greater than 0 है या फिर A less than 0 है. अगर A greater than 0 है तो your graph will be upward parabolic, और A less than 0 है तो graph will be downward parabolic, right? Second thing is कि अगर क्वाड्रेटिक है तो at most will get 2 root. At most will get 2 root. इसका क्या मतलब है कि ग्राफ जो है मैक्सिमम x को 2 बार कट करेगी, या हो सकता है कि एक बार कट करे, या हो सकता है कि एक बार भी ना कट करे. सो वो कैसे डिसाइड करेंगे अपन? तो यहां से वी कैन you know form 3 cases over here, like it will cut x at 2 part or 3 point or 1 point. It will depend कि उसका d क्या है, I mean discriminant क्या है. a is greater than 0 and d is greater than 0. So we know कि a greater than 0 है तो ग्राफ तो मेरे को क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोलिक मिलेगा, बट इट विल कट x एक्सिस एट 2 पॉइंट. मतलब इन दिस केस विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रूट, है ना. व्हाट अबाउट a greater than 0 and d equal to 0? It will just touch x axis. मतलब in this case we'll get 2 roots, 2 distinct roots we can say. In this case we'll get 2 equal roots, or we can say कि 1 रूट, है ना, क्योंकि x को जस्ट टच कर रहा है. What about third case? If a greater than 0 and d less than 0, इस केस में क्या होगा? It will not cut x axis. मतलब यहां पे क्या होगा? There will be no real root for this case. सही है. 3 केस यहां पे बने and the 3 cases for a less than 0. 3 cases for a less than 0. सेम प्रोसीजर होगा. a less than 0, d greater than 0. अगर d greater than 0 है तो ग्राफ क्या होगा? x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगी जैसे यहां पे कर रही थी, बट यहां पे क्या होगा? इट विल बी डाउनवर्ड इन नेचर, है ना. a लेस देन 0, d इक्वल टू 0, क्या होगा? ग्राफ जो है जस्ट टच करेगी. a लेस देन 0, d लेस देन 0, नो रियल रूट, मीन्स इट विल नॉट कट x एक्सिस. सही क्या? सो दीज आर द 6 केसेस वी कैन फॉर्म फ्रॉम दिस, एंड दिस इज व्हाट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थोड़ा सा अपन बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का, है ना. जो अपन फर्स्ट केस में भी बात किए थे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑल. तो यहां बात किए थे कि बेस्ड ऑन डिग्री, आपका डिग्री अगर 1 है, आपका डिग्री 1 है तो आप क्या बोलते हो कि इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल. आपका डिग्री अगर 2 है तो आप क्या बोलते हो कि इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ डिग्री इज 3, देन व्हाट? इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. One more thing is कि constant polynomial. What is constant polynomial? Any idea? What is constant polynomial? So as name suggests, constant. So whatever the number is like 1, 2, 3, 4, these all are the constant polynomial. But main point is degree of constant polynomial. Degree of constant polynomial is 0. अब 0 क्यों बोलते हैं अपन? सिंपल तरीका है, जैसे मान लो अपन एक constant polynomial लिया 5, है ना, 5. तो कैन वी से कि वी कैन राइट 5 एज समथिंग लाइक दिस, 5 into 1, एंड 1 को अपन क्या बोल रहे हैं कि 5x to the power 0. सी, मेरे को डिग्री पता करना है तो विल हैव टू इंट्रोड्यूस वेरिएबल, राइट, है ना. तो जस्ट आई हैव कन्वर्टेड दिस 1 इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड वी हैव रिटन इट लाइक x to the power 0. किसी भी नंबर का पावर 0 क्या देगा? 1 देगा. सो 5 into x की पावर 0. सो यहां से वी कैन से कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0. So degree of any constant polynomial is what? 0. The next polynomial is what? Zero polynomial. Next is what? Zero polynomial. What is zero polynomial? Zero is the zero polynomial, है ना. अब इसको अपन इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसका डिग्री वी कैन नॉट डिसाइड. डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट? नॉट डिफाइंड. Why so? Any idea? See, अगर आप चाहो तो इस फॉर्म में ट्राई कर सकते हो. जैसे मान लो अपन बोल रहे हैं कि हाँ, अगर मेरे को डिग्री पता करना है तो विल हैव टू इंट्रोड्यूस वेरिएबल. तो लेट्स ट्राई टू इंट्रोड्यूस वेरिएबल. अपन बोल रहे हैं कि 0 को 0 into 1 करेंगे तब भी 0 आएगा, तो 0 into x का पावर 0 कर लेते हैं, राइट. बट 0 को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज विल गेट 0 ओनली, राइट.
So either you can write 0 into x ka power 1 or x ka power 0 or 0 into x ka power 1 or 0 into x ka power 2, 0 into x to the power 3, whatever we'll write, all will become equal to 0, right? So in that case, अगर यहाँ पे बात करें तो degree is 0, here it's 1, it's 2, it's 3. So we cannot say कि whatever the degree, what kind of degree will possible for this. So that's the reason we used to say कि degree of 0 polynomial is what? Is not defined. सही है क्या? So that's all about the day. The next part of polynomial, how to find the root or relation between the roots and coefficient, we'll talk in later phase. Bye bye, take care, have a nice day.